नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6th Sem, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Students, today our session is maintaining the ecology of the classroom, part 2nd. In session two parts. First is balancing autonomy and authority, and second point is promote awareness and self-regulation. First of all, introduction. Teachers should provide structure while helping students develop autonomy, awareness and self-regulation skills, because teaching and learning are natural process. When we consider comparisons in the natural words, we can understand them better. A classroom is an ecosystem much like natural ecosystems that define the world around us. The existence of any ecosystem depends on the continuous transfer of energy between organisms. Plants, the primary producers of energy on earth, receive energy from the sun. Balancing autonomy and authority. However, we must remember that this change in the dynamic of classroom management is a balancing act. Children simply cannot take full responsibility for handling themselves, as many misguided models for student driven learning suggest. This is not developmentally appropriate. In a healthy classroom ecosystem, teachers must balance learning autonomy and adult authority, both of which work together, allowing students to be the primary creators of educational experiences, thereby sustaining classroom ecosystems. John Dewey argued that students are able to build knowledge autonomously using their agency, access and autonomy, receiving support from peers and teachers when necessary. Effective classroom management seeks to enable students to make responsible decisions for themselves, so that they can be reach their agency and experience autonomy when learning. In modern progressive education, encouraging energy and autonomy are often mistaken for loose boundaries and permissions. We mistakenly subscribe to the notion that for students to be autonomous, they should be allowed to do that they want.
Instead, working with autonomy means making responsible decisions within agreed upon constraint that may sound vengeful, but to build energy, agency and autonomy, students need boundaries and structure. The life experiences we bring make it possible to become official figures in the classroom and make good learning choices. Therefore, we should provide learning agency and autonomy with structures that help to create awareness about what makes decisions good. How do you feel their structure provide the specially of medicine that all classroom management practices require while making room for learning to flex their autonomic muscles? Uh, After this, promote awareness and self-regulation. Awareness includes internal, physical, and emotional awareness as well as one's external environment and people's awareness in it. Creating awareness in all these areas is important because making responsible, autonomous decisions is depend on a child's ability to see what is within and around them. It is difficult to bring awareness in the classroom system. It is almost possible, impossible to see awareness because as teachers we are depend on external behavior to help as detect the degree to which a student is aware of his surrounding. But this does not mean that trying to develop awareness among our students is hopeless. This session prepared 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Let's see in Hindi. आज का जो सेशन है उसका नाम है कक्षा की परिस्थिति को बनाए रखना, पार्ट सेकंड। इसमें हम 2 पॉइंट मेन जो जिस पर डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी, और दूसरा है वह जागरूकता और स्व विनियमन को बढ़ावा देना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसको हम लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा। और अभी हम बात कर रहे हैं परिचय की। विद्यार्थियों को स्वायत्तता, जागरूकता और स्व विनियमन कौशल विकसित करने में मदद करते हुए शिक्षकों को संरचना प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण और सीखना प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। जब हम प्राकृतिक दुनिया में तुलनाओं पर विचार करते हैं तो हम उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। एक कक्षा एक पारिस्थितिकी तंत्र है, बहुत कुछ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह है जो हमारे आसपास की दुनिया को परिभाषित करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व जीवों के बीच ऊर्जा के निरंतर हस्तांतरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक जैसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब दूसरा प्रस्तावना को देखने के बाद हम बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। हमें याद होना चाहिए कि कक्षा प्रबंधन की गतिविधि में, गतिशीलता में यह बदलाव एक संतुलनकारी कार्य है। विद्यार्थी संचालित शिक्षण सुझाव के लिए कई गुमराह मॉडल के रूप में बच्चे बस खुद को संभालने की पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। यह विकासात्मक रूप से उचित नहीं है। एक स्वस्थ कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में शिक्षकों को विद्यार्थी की स्वायत्तता और वयस्क प्राधिकार को संतुलित करना चाहिए। दोनों एक साथ काम करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षिक अनुभवों के प्राथमिक निर्माता होने की अनुमति मिलती है और इससे
कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र संपन्न होता है। जॉन डेवी ने तर्क दिया था कि छात्र अपनी एजेंसी तक पहुंच और स्वायत्तता का उपयोग करके स्वायत्तता से ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जब आवश्यक हो तो साथियों और शिक्षकों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावी कक्षा प्रबंधन विद्यार्थियों को स्वयं के लिए जिम्मेदार निर्णय लेने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है, जिससे वे अपनी एजेंसी तक पहुंच सकें और सीखते समय स्वायत्तता का प्रयोग कर सकें। आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा में प्रोत्साहित करने वाली एजेंसी और स्वायत्तता को अक्सर ढीली सीमाओं और अनुमति के लिए गलत माना जाता है। हम गलती से इस धारणा की सदस्यता लेते हैं कि विद्यार्थियों को स्वायत्त होने के लिए उन्हें वह करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वे करना चाहते हैं। इसके बजाय स्वायत्तता के साथ काम करने का मतलब सहमति योग्य बाधाओं के भीतर जिम्मेदार निर्णय लेना होता है। यह प्रतिशोधात्मक लग सकता है, लेकिन एजेंसी और स्वायत्तता के निर्माण के लिए विद्यार्थियों को सीमाओं और संरचना की आवश्यकता होती है। जीवन का अनुभव जो हम लाते हैं वह कक्षा में अधिकाधिक आंकड़े बनने और सीखने के अच्छे विकल्प बनाने के लिए संभव बनाता है। इसलिए हमें शिक्षार्थी एजेंसी और स्वायत्तता को उन संरचनाओं के साथ स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए जो इस बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करती है कि निर्णय लेने में क्या अच्छा लगता है, कैसा लगता है। ये संरचनाएं चिकित्सा की विशेषता प्रदान करती हैं जो सभी कक्षा प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता होती है, जबकि विद्यार्थियों के लिए अपनी स्वायत्तता मांसपेशियों को फ्लेक्स करने के लिए जगह बनाते हैं। अब हम दूसरे बिंदु की बात करेंगे, वो है जागरूकता और स्व विनियमन को बढ़ावा देना। जागरूकता में आंतरिक, शारीरिक और भावनात्मक जागरूकता के साथ साथ किसी के बाहरी वातावरण और उसमें लोगों की जागरूकता शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिम्मेदार स्वायत्तता निर्णय लेना एक विद्यार्थी की क्षमता पर निर्भर है कि वह अपने भीतर और आसपास क्या देख सकता है। कक्षा की व्यवस्था में जागरूकता लाना मुश्किल है। जागरूकता को देखना लगभग असंभव है, क्योंकि शिक्षकों के रूप में हम बाहरी व्यवहार पर निर्भर हैं ताकि हमें उस डिग्री का पता लगाने में मदद मिल सके जो एक विद्यार्थी अपने परिवेश से अवगत होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे विद्यार्थियों में जागरूकता विकसित करने की कोशिश करना निराशाजनक है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता और स्व विनियमन को बढ़ावा देना इसका एक पार्ट हो गया। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। आप इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आगे के जो सेशन हैं, इनके जो अगले पार्ट हैं, उनको देखने के लिए इस वीडियो को जो डिजिटल वर्जन 2.0 है उनके द्वारा बने गए वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।